Sheikh Abdul Razak bin Ghaus Pak रहमतुल्लाह अलैह, the other son of हुजूर गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका नाम सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी, कुनियत अब्दुल रहमान अबुल फराह, और फिर लक़ब आपके ताजुद्दीन, द ताज ऑफ द दीन, द क्राउन ऑफ द दीन। दिस इज द टाइटल ऑफ हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और ही बोर्न 18 ज़िलक़ादा 528 हिजरी, 9 of September 1134 in Baghdad, and he make parda from this dunya 6th of Shawwal al-Muazzam 603 hijri, according to other tahqiq, other narration 623 hijri. He make parda from this dunya. That was the day of Saturday. Hazrat Sayyid Abdul Razak Gilani rahmatullah alayhi, according to English year 1207 ईस्वी, ही मेक पर्दा फ्रॉम दिस दुनिया। और आपका मज़ार पर नून इन बगदाद जो बाबुल हर्ब है, बाबुल हर्ब, वहाँ पर आप मदफन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर ने आपके दर की भी हाज़िरी की है, हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप जो हैं इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह, द नॉलेज ऑफ फ़िक़्ह, द नॉलेज ऑफ हदीस ही गेन डायरेक्टली फ्रॉम हिज अब्बा जान, फ्रॉम हिज वालिद माजिद हज़रत हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह। और देन आप अपने वक्त के मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी, मुतकल्लिम भी, फ़क़ीह भी, और जामे शरीयत और तरीक़त भी, एंड लर्न द टीचिंग फ्रॉम हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर आप जामे उलूम अक़लिया व नक़लिया भी हैं कि ही गेन द नॉलेज ऑफ इस्लाम, द नॉलेज ऑफ द हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम हुज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए आपका टाइटल है हज़रत ताजुद्दीन अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर आप अपने वक्त के मुफ्तिये इराक भी हैं। आपको सिर्फ मुफ्ती नहीं कहा जाता था, हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी को मुफ्तिये इराक कहा जाता था कि इराक के मुफ्ती हैं हजरत सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर आपकी भी ये शान है कि ही इज द सन ऑफ हुज़ूर गौस आज़म, फर्जंद भी हैं, एंड ही इज द स्टूडेंट ऑफ हुज़ूर गौस आज़म। आप शागिर्द भी हैं, एंड ही इज द खलीफा ऑफ हुज़ूर गौस आज़म। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द टीचिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ द सन्स ऑफ हुज़ूर गौस आज़म। they are the awliya of their time, they are the muhaddis and the mufassir of their time, that they make everything about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They said that we will connect your heart in the dar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you must be firm on the dar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So make sure कि Rasulullah का दामन हाथ से न जाए, must not leave the daman, must not leave the daman of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और फिर जो the one who collect the bayanat, the khutbat, the lectures of हुजूर गौस आज़म, there are two personalities. क्योंकि अगर हमसे अब ये कोई बंदा ये भी पूछे कि भाई tell us who collected the lectures, the sermons, the khutbat of हुजूर गौस आज़म, तो हमारे पास वो भी जवाब होगा. We will have the answer for that also, for that question also. तो two personalities and both are the खलीफा of हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले जो है एक जो है हजरत सैयद अफीफुद्दीन, he collected the bayanat, the khutbat of Huzur Ghaus Azam, and the other personality, that is alhamdulillah sahib urs Hazrat Sayyid Abdul Razak Gilani rahmatullah alayhi, because he knew that my Abba Jan, his lecture is according to Quran and Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So isliye that will help me also, will help my children also, and will help the awamun nas also. So this was the work that he collected the khutabat of his beloved Abba Jan Huzur Ghaus Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu. A time mukhtasar sa hai, the other shan, he witnessed from his eyes the karamat, the power of Huzur Ghaus Azam. अब वो कैसे? आप फरमाते हैं कि हमने जुम्मा पढ़ा, I read Jummah behind my beloved Abba Jan in the Masjid of Baghdad, Jamia Masjid of Baghdad. तो फिर हम after Jummah दो Hazrat Sayyid Abdul Razak Gilani, he narrating, he says कि my two other brothers was also with me, and we was not next to our Abba Jan but just 2 steps behind with Abba Jan. अब ये respect भी है कि beloved parents की भी कि we never walk next to our Abba Jan, 2 steps behind. तो Hazrat Sayyid Abdul Razak Gilani
गिलानी कहते हैं कि विद माई 2 brothers आई एम बिहाइंड माई अब्बा जान, सो वन कैरावन पास, एक जो काफिला था, दैट वाज सोल्जर्स ऑफ द खलीफा वक्त, द रूलर ऑफ दैट टाइम, हिज सोल्जर पास, तो उनके हाथ में कुछ मटके थे, so उसके अंदर थी शराब। सो हुजूर गौसे आजम न्यू, जब दे पास हुजूर गौसे आजम, सो हुजूर गौसे आजम नो के व्हाट इज इन दिस बिग क्ले बॉल। तो हुजूर गौसे आजम से, ओ सोल्जर्स, ओ सिपाहियों रुक जाओ। सो दे न्यू कि अगर गौसे आजम ने पकड़ लिया तो फिर who will help us? They knew also कि हुजूर, that's why they start hitting their horse fast to go fast. So then they never listen हुजूर गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम say to the horse कि oh horse you stopped. So same time the horse stopped. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी रहमतुल्लाह अलैहि विटनेस, ही सेज के द सेम टाइम द जो सवारी थी, द हॉर्स, घोड़े थे, वो रुक गए, एंड द सिपाही, द सोल्जर केम इन द कोर्ट ऑफ डे, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा हुजूर गौसे आजम इसके अंदर जो है शराब है, वी टेकिंग फॉर द खलीफा वक्त। तो हुजूर गौसे आजम सेज के अब इसके अंदर शराब नहीं, इन दिस मटकास देयर इज अ विनेगर। सो यू जो सिरका है, अब नाउ यू मस्ट टेल द खलीफा वक्त ही मस्ट ड्रिंक विनेगर। अब आप पी सकते हैं विनेगर, यू कांट ड्रिंक द विनेगर। व्हेन खलीफा वक्त ओपन, सो इट वाज विनेगर इनसाइड। ही केम इन द कोर्ट ऑफ हुजूर गौसे आजम एंड ही आस्क्ड फॉरगिवनेस। हुजूर गौसे आजम सेज के मैं तो माफ कर दूंगा, बट अगर माफी मांगनी है यू मस्ट आस्क फॉरगिवनेस इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो दिस इज द टीचिंग ऑफ हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर के, हाउ ही पुट the people, even the rulers of his time, on sirat-e mustaqim.